welcome to this session. In this session, we will start with our subject, that is engineering material. Okay. So again, we will follow the syllabus as prescribed by HP Taknikiya Shiksha Board. Okay. So as per board syllabus, we have third subject, that is engineering material in third semester. Okay. So we will follow the syllabus. Okay, so first chapter under this syllabus is classification. Not classification. This general introduction to this engineering material and its properties. Then we will study ferrous materials, different ferrous materials. Then we will go to third chapter, which includes this non-ferrous materials, aluminium, copper, zinc, etc., and its alloys. Then we'll proceed to composite, ceramic, and plastic. That is our fourth chapter. These pillars, like our this thermosetting plastics. So under this fourth chapter, we will cover all those topics. Okay. Then we will proceed on fifth chapter, insulating materials. Okay. The heat insulating materials and electrical insulating materials. Okay. And sixth chapter is identification. How we will identify the which material is iron, aluminium, copper. There are some particular experiments or testing methods which we will study in this sixth chapter. Okay. So last one is most important, fundamentals of heat treatment and heat treatment of metals, basically in which we will study iron. Okay. So the heat treatment done on a iron product. Okay. So these are the all topics that we will cover in our upcoming sessions. Okay. So let's start with this first chapter. There is general introduction to engineering materials. Okay. So as per our first chapter, okay, let's go to this our PPT. Okay. 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 So as per our first chapter is introduction to materials. Okay. So first thing we need to discuss here is why we need to study this engineering materials. Okay. So diploma holders are required to make use of different materials for various applications. Like they have to design bridges, parts, components. Okay. So they have to control the production methods. Okay. So they have to supervise various parts which industry may have producing. Okay. Like say nut and bolts, door handles, automobile parts, all of those parts. Okay. So which part is to be used, which part not to use, which will fit as per demand, which will fit as per requirement of properties. So it need lot of knowledge, lot of observation regarding materials. Okay. So if you have that knowledge, observation, then after you will easily use those different materials as per requirement. Okay. So that's why we are studying here this chapter, this engineering material. Okay. So that you can best utilize your knowledge and best utilize after best utilizing your knowledge, you can best utilize the proper object, proper component and proper material for that particular structure. Okay. कि आप पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के लिए आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, वो तभी कर पाएंगे अगर आपको उसका नॉलेज होगा. लाइक आपने ब्रिज में आपने नट बोल्ट्स रखने हैं, आपकी MS वायर्स, MS रॉड्स लगनी हैं, तो वो तभी आपको नॉलेज होगा, वो तभी आप लगा पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे अगर आपको उसका नॉलेज होगा. ओके. सो दैट इज़ अवर एम. ओके. सो दैट इज़ अवर दिस aim here. Okay. So first topic of and this chapter is engineering material, introduction to engineering material. What are the engineering materials? Okay. So
the materials which are used in engineering structures, engineering components, engineering applications, these are all called materials, engineering materials. Okay, so why these are called engineering material? Why not material only? Because they have to withstand with applied load without breaking, without exhibiting excessive deflections. Means to say कि जब कोई मटेरियल किसी जगह यूज़ हो रहा है तो उसको इंजीनियरिंग एनालिसिस के हिसाब से उसे वहाँ पर रिटेन रहना पड़ता है. जैसे सपोज एक ब्रिज बना है, तो ब्रिज को मेन ऑब्जेक्ट रहता है उसका कि भाई आप वो उसने लोड एब्जॉर्ब करना है, लोड में उसने रिटेन रहना है. तो यही उसका मेन फंक्शन है. तो उसमें जो मटेरियल लगा है, माइल्ड स्टील लगा है चाहे स्टील लगा है, तो उसका भी मेन काम ये रहेगा कि वो प्रिस्क्राइब्ड लोड के अंडर वो काम करता रहे. ओके, दैट इज इट्स फंक्शन एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंजीनियरिंग मटेरियल. ओके, तो जो इंजीनियरिंग एनालिसिस के अंडर हम एनालिसिस कर रहे हैं मटेरियल का, वो तो इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया आपका. एंड इसमें बहुत कुछ आता है. सपोज आपके रेफ्रिजरेटर डोर्स हैं, आपके टीवी फ्रेम्स हैं, आपके वुडन स्टैंड्स हैं, आपके डोर हैंडल्स हैं. दिस आर ऑल engineering materials because they are used as engineering applications. Okay, like say as per image here, we have this production unit. इस प्रोडक्शन यूनिट में आपका देखो नंबर ऑफ ऑटोमेटिक मशीनरीज लगी हैं, प्रोडक्ट बना रहा है. अनदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हेयर इज ट्रैक्टर. अब इस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इज ट्रैक्टर, बट इसमें नंबर ऑफ हमें क्या लगे हैं यहाँ पर, इसमें पार्ट इंजीनियरिंग मटेरियल लगे होंगे. जैसे रबर टायर्स लगे हैं, आपकी फ्रेम्स लगी हैं, मेटल की फ्रेम्स लगी हैं. ओके, लाइक दिस इन अनदर इमेज. यहाँ पर कार बनी है, कार में नंबर ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल हैं, लाइक फ्रेम है, क्लच है, कुछ भी है. ओके, सो दीज आर ऑल कॉल्ड इंजीनियरिंग मटेरियल. ओके, so we can summarize here, it is group of materials that are used in construction of man-made structures and components. Okay, so it includes metals, polymers, ceramics and composites. Okay, so now let's go to second topic, this classification of engineering materials. कि जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल हैं पूरी दुनिया में, all the materials throughout the world, तो उन्हें हम क्लासीफाई करेंगे, उन्हें हम क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. ओके, सो दैट इज अवर क्लासिफिकेशन. सो एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स वी हैव it is broadly classified into 4-5 types. Okay, so let's go to image to have better understanding here. Okay, so as per image, okay, so engineering material here, it is classified into number of groups. Okay, first one is metal. इंजीनियरिंग मटेरियल जितने भी हैं पूरी दुनिया में, उसको हमने अलग अलग में डिवाइड किया है ग्रुप में. जैसे मेटल हो गया, सिरामिक हो गया, पॉलीमर हो गया, कंपोजिट हो गया, इलेक्ट्रॉन मटेरियल्स हो गया, बायो मटेरियल्स हो गया, एडवांस मटेरियल्स हो गया. ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, लेट्स गो टू दिस पीरियोडिक टेबल. एज पर केमिस्ट्री वी विल स्टडी सम पार्ट्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल. ओके, एज यू नो पीरियोडिक टेबल क्या है, ये केमिस्ट्री का एक टेबल है जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी मटेरियल हैं, ओके, उसे वो किसी न किसी एलिमेंट से बना होता है. लाइक आपका स्टील है, स्टील बेसिकली क्या होता है, आयरन और क्रोमियम और निकल का एक कॉम्बिनेशन है. ओके, एल्यूमिनियम की बात करें, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, एल्यूमिनियम, देयर इज एल्यूमिनियम. ओके, एल्यूमिनियम का मटेरियल होता है, एल्यूमिनियम यहाँ से आया. मीन्स टू से कि पूरी दुनिया में जितने भी मटेरियल बने हैं वो अपने कुछ एलिमेंट से बना होगा, बेसिक एलिमेंट से. वो सारे एलिमेंट्स कहाँ पर हमने एक्युमुलेट किए हैं, कहाँ ग्रुप किया है, पीरियोडिक टेबल में. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. ओके, वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ओके, here we have carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, bromine, phosphorus, sulfur, neon. Means to say कि पूरी दुनिया, throughout the world we have number of products, number of materials. Okay, they are made up of they are may be made up of 2 or more elements. 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बन सकता है, बट वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में डिस्क्राइब किया है. ओके, सो जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल भी होते हैं वो भी यहीं से बने होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम के आपके डोर बने होते हैं, वो कैसे बने होंगे, एल्यूमिनियम से बना होगा, तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम. ओके,
अब स्टेनलेस स्टील की आपकी वायर्स बनी होती हैं, आपके स्केल बने, तो वो कैसे बनते हैं? देखो, आयरन और क्रोमियम और निकल से बना होता है, तीन का कॉम्बिनेशन होता है, आयरन ऑलाइड बोलते हैं जिसे हम। ओके, कॉपर है, कॉपर के आपके यूटेंसिल्स होते हैं, देखो यहाँ पर कॉपर है। देन वी हैव ब्रास, ओके, ब्रास ब्रॉन्ज, ये अलॉय होते हैं कॉपर जिंक, कॉपर जिंक टिन के, तो हेयर इज कॉपर जिंक एंड टिन। ओके, सो पूरा जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल है वो हमारे पीरियोडिक टेबल से ही आते हैं। ओके, तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन हम समझेंगे तो वो भी क्लासिफिकेशन भी हम ही यहीं से समझेंगे। ओके, सो जो आपको ये दिख रहा है लाइट ब्लू शेड में, दिस सी ब्लू कलर में, ये आपका क्या है? इसे हम बोलेंगे मेटल। ओके, दिस आर ऑल मेटल्स। ओके, दिस राइट साइड में क्या है आपका? राइट साइड में है नॉन मेटल, राइट साइड में क्या आपका? नॉन मेटल है। ओके, सो these are all metals, these all elements in sea blue color: titanium, vanadium, chromium, ferrous, and these are all yellow in color are non metals. Okay, so पहला जो ग्रुपिंग हमारी यहाँ पर क्लासिफिकेशन में की है, तभी देखो क्या की है आपकी मेटल्स। ओके, मेटल्स कुछ भी हो सकता है, फेरस भी होता है, नॉन फेरस भी होता है। फेरस मतलब जिसमें आपका आयरन इंक्लूड होगा, नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन इंक्लूड नहीं होगा, जैसे एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, इसमें एल्यूमिनियम, इसमें आयरन नहीं है। दूसरा हमारा क्या है, ये जो एक्सेप्ट दिस मेटल, जितना आपका यहाँ पर बच गया सारा, सिरामिक, पॉलीमर, कॉम्पोजिट, दिस आर ऑल नॉन मेटल्स। ओके, फर्दर हम देखते हैं क्या है सिरामिक क्या होते हैं। इसमें सेकंड ग्रुपिंग है सिरामिक। ओके, अब क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे रहते हैं पीरियोडिक टेबल, जैसे ये भी है आपका, कुछ एलिमेंट है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, और यहाँ हमारे मेटल है, दिस आर नॉन मेटल। ओके, ओके, सो जैसे आपका यहाँ पे देखो, ये क्या है? नॉन मेटल, और यहाँ मेटल है। अब जब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिक्स होगा तो एक और नया मटेरियल बनता है, वो हमारा उसे हम जनरल नाम देते हैं सिरामिक का। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, देन इट मेक्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, सो इस तरह कॉम्बिनेशन जहाँ आपका एक मेटल और एक नॉन मेटल आपका ऐड हो रहा है, तो वहाँ एक नया मटेरियल बन गया, उसे हम बोल दिया सिरामिक। ओके, लाइक से दिस सिरामिक। ओके, लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, these are all ceramics. Okay, so ceramics में आपके एल्यूमिना, डायमंड में, डायमंड इज बेसिकली कार्बन, डायमंड क्या है? डायमंड है, डायमंड इज बेसिकली कार्बन। एल्यूमिना इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही एक मेन कंपोनेंट रहता है इसमें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मीन्स वन इज मेटल। ओके, लेट्स गो टू दिस ओके, one element is this metal, and aluminum oxide means aluminum is metal, and oxide means oxygen 3, O3. Okay, Al2O3, तो O3 is what? O, oxygen है जो, तो ये क्या है? नॉन मेटल। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट सिरेमिक क्या होगा? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, लेट्स गो टू थर्ड ग्रुपिंग, दैट इज दिस पॉलीमर। पॉलीमर बेसिकली, पॉलीमर होते हैं हमारे, क्या होते हैं? प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स हैं आपके, जैसे आपकी रेफ्रिजरेटर डोर्स में आपके प्लास्टिक लगा होता है, आपकी टीवी फ्रेम्स में प्लास्टिक लगा होता है, आपकी वायर्स में प्लास्टिक लगा होता है। बेसिकली क्या है वो? बेसिकली आपके वो कार्बन हाइड्रोजन का आपका फ्रेमवर्क होता है, मीन्स कार्बन हाइड्रोजन उसमें मेन रहते हैं, बाकी उसमें एडिशंस होती हैं, लाइक क्लोरीन की होगी, ब्रोमीन की होगी, नाइट्रोजन की होगी, ऐसी एडिशंस होती हैं। सो अगेन वी विल फॉलो दिस दिस वन पीरियोडिक टेबल। ओके, सो पॉलीमर बेसिकली क्या है? दिस कार्बन और हाइड्रोजन, ये हमारा बेसिक उसका बेस है। फिर इसमें क्या ऐड होगा? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, और तो वहाँ से हमारा क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। ओके, लाइक पॉलीमर इज ऑल प्लास्टिक, नायलॉन, रबर, ये हमारे पॉलीमर्स में है। ओके, देन वी विल गो टू थर्ड ग्रुपिंग, दैट इज कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट होता है कि पॉलीमर, सिरामिक और मेटल जो हमने पढ़े, इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो कंपोजिट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिलर का एग्जांपल लेते हैं, जो आपके कंक्रीट का एक पिलर, नॉट कंक्रीट, जो घर में आपका पिलर होता है,
अब वो पिलर में आपका सीमेंट लगा होता है, इसमें मेटल मेटल के रॉड्स लगी होती है, एमएस रॉड्स भी बोलते हैं हम जिसे, सरिया बोलते हैं हम जिसे। ओके, सो बेसिकली वो पूरा आपका एक क्या बन जाता है, एक नया मटेरियल बन जाता है। वो क्या है हमारा कंपोजिट, उसमें क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मेटल एंड जो सीमेंट है बेसिकली वो क्या है सिरामिक। ओके, so composite is basically what it is it may be the mixture of metal and ceramic, it may be mixture of ceramic and polymer, और इट कैन बी मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थ्री कंपोनेंट्स। ओके, सो कंपोजिट में क्या होगा, इनके सभी का मिक्सचर होता है। ओके, हम डिटेलिंग में जब चैप्टर हमारा कवर होगा तो हम वी विल गो इन फर्दर डिटेल्स दैट व्हाट आर द डिफरेंट कंपोजिट्स। सो for timing we will just have to have knowledge about this composite. Okay, so it may be the mixture of metal and ceramic and polymer. Okay, सो एक आपका एग्जाम्पल ये आपका पिलर का हो गया। ओके, सो नेक्स्ट ग्रुपिंग इज इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर जैसे चिप्स होती हैं आपकी, चिप लगी होती है फ़ोन में, लगी होती है आपकी कंप्यूटर्स में, लगी होती है आपकी टीवी सेट में, लगी होती है चिप, बेसिकली वो सेमीकंडक्टर होते हैं। अब वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में आपके यहाँ आते हैं आपके, देखो सिलिकॉन, गैलियम, सिलिकॉन गैलियम, ये हमारे मोस्टली सेमीकंडक्टर्स रहते हैं इसके। ठीक है, सो यहाँ से आपके सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल बनते हैं। ओके, सो अनदर वन इज बायो मटेरियल्स, मैन मेड मटेरियल्स, प्रोटीन, आर्टिफिशियल, देन सम स्मार्ट मटेरियल्स। ओके, so we can summarize here that to classify this engineering material we have to group all the materials throughout the world into some groups. Okay, metal, ceramics, polymers, composites, electronic materials, biomaterials and smart materials. ओके, मतलब दुनिया में जितने मटेरियल हैं उसे हमें इन 7-8 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, और यही हमारी क्या है क्लासिफिकेशन है। फर्दर हम इन आवर अपकमिंग टॉपिक्स वी विल गो इनटू much detail, and okay, so this is all about this classification of engineering material. Before ending this topic, engineering material, classification of engineering material, let's have this details of this image. Okay, it is a beautiful image of consisting of periodic table. ये क्या है, periodic table ही है, बट इसमें जो metals यहाँ पर show हुए हैं like this iron, लाइक से उसकी जगह एक मटेरियल बनाया है कि उससे क्या मटेरियल बना है। देखो यहाँ पर क्या बना है उसका। ओके, आई गोइंग टू जूम इट सो दैट वी कैन हैव बेटर व्यू। ओके ओके ओके, सो एज पर पीरियोडिक टेबल दिस इज आयरन। आयरन से क्या बना है, यहाँ पर ब्रिज बना है। देखो फिर आपका यहाँ पर एज पर पीरियोडिक टेबल ये क्या, कौन सी जगह है, कॉपर की। कॉपर से क्या बना है आपका, कॉपर की वायर्स बनी है। फिर क्या बना है, जिंक, ये जिंक का है पोजीशन। यहाँ से क्या बना है आपका, एक ब्रास का इंस्ट्रूमेंट बना है। ओके, फिर जैसे आपका देखो यहाँ पर जर्मेनियम है एज पर पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ क्या बना है, चिप बनी है आपकी। ओके, यहाँ पर आपका देखो लीड है इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे लीड है। यहाँ पर क्या बना है, डंबल वेट्स बने होते हैं। तो डंबल जो आपके बने होते हैं ब्लैकिश से दिखते हैं, डेट आर लीड बेसिकली। ओके ओके, जैसे अब यहाँ पर जाते हैं, लिथियम है, यहाँ पर क्या बना है, बैटरी। सो दिस इमेज बट जनरली इस डिस्प्लेज कि आपका हर एक एलिमेंट से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना है, उसे हमने इंजीनियरिंग मटेरियल बोल दिया है। ओके, और वही इस इमेज में शो हुआ है। लाइक दिस वन इज एज पर पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर क्या है, टाइटेनियम। तो यहाँ पर क्या बना है आपका, एरोप्लेन बना है। टाइटेनियम के एरोप्लेन बनते हैं आपके। ओके, देन वी हैव एल्यूमिनियम हेयर। एल्यूमिनियम किस लिए यूज़ होता है, एरोप्लेन बनाने में। सो दिस डायग्राम generally is showing us the periodic table. This is basically periodic table. इस periodic table में क्या होता है, जो एलिमेंट जहाँ जिस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होता है उसका डायग्राम बताया गया है। ओके, सो इट इज़ अ वेरी गुडफुल यूजफुल इमेज। ओके, सो हेयर वी हैव दिस हीलियम। यहाँ पर ये बलून के अंदर हम एयर फिलिंग का काम करती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस classifications. Okay, so अगर क्वेश्चन आपको आता है व्हाट क्लासिफाई द मटेरियल्स, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस diagram. Okay, you have to draw this diagram. Okay, you have to give some examples of these
classification. Like non-ferrous, we have aluminum, brass, bronze. In polymers, we have this nylon, polymer, vinyl, epoxy. In our upcoming topics, we will go into details of this, all these classifications. Okay, so this is all about classification of engineering material. Okay, so let us start with another. Next topic is material properties.